Hello and welcome students. Today we are going to begin with the first chapter of our physics syllabus, physics standard 11 syllabus, and the name of the chapter as you can see is units and measurement. Before starting the chapter guys, let me introduce myself. My name is Salman Petiwala. I am a mechanical engineer gold medalist from IIT Madras, and I'll be dealing with this particular topic, that is units and measurement. Okay, so dosto, let us make a start to the chapter. Friends, the first thing in this chapter we need to understand is थोड़ा सा हम introduction कर देते हैं about physics because this is the starting chapter of your standard 11 physics, right? तो थोड़ा सा introduction से start करते हैं, then we'll proceed further. So let's start with the introduction of the chapter, and in that let us start with the concept of something called as a physical quantity. Physical quantity. Please try and understand this word first. ये थोड़ा सा introduction है, ये समझेगा तो आगे आप लोगों को सब कुछ कंसेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है? सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ फिजिकल क्वांटिटी? सो दोस्तों, क्वांटिटी मतलब किसी भी चीज की हिंदी में कहो तो मात्रा, राइट? अमाउंट, राइट? सो व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, राइट? लेट मी जस्ट डिफाइन इट लाइक दिस. अ क्वांटिटी which can be measured. If you can measure something, किसी भी चीज को अगर मेजर कर सकते हैं ना, तो फिजिक्स में उसे कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? आई एम गिविंग अ रफ एग्जांपल, ओके? लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टाइम. कैन यू मेजर टाइम? योर आंसर वुड बी यस. हम टाइम को मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई मे से टाइम लेट्स से इज 100 seconds, right? 100 seconds, right? So I can say this can be measured, right? It can be measured. So therefore this is the physical quantity. Short form में लिख रहा हूँ, this is a physical quantity. Okay? Let me give you one more example. Let's say length. दोस्तों, मेरे पास हाथ में एक मोबाइल फोन है, मुझे उसका अगर लेंथ मेजर करना है, let's say what I took a scale and मैंने इसका लेंथ मेजर किया, and इसका आंसर फॉर एग्जाम्पल आया 9 सेंटीमीटर. ओके, cm stands for centimeter. So therefore since you can measure it, it will be a physical quantity. शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं physical quantity. One more example before I go forward. Okay, let's say guys, you all have gone to the market. Okay, हम बाजार गए, we have bought let's say 2 kg potato. आलू लाने थे, potato लाने थे. So what is the mass of those potatoes? I'll say mass of the potato is 2 kg, right? 2 kilogram. So मैं कहूँगा mass of potato is turning out to be 2 kg. So you can measure it, right? So therefore this will be also a physical quantity. Okay? So I gave you example of what is exactly a physical quantities. और भी बहुत सारे example है, पर time measure कर सकते हैं, length measure कर सकते हैं, mass measure कर सकते हैं, तो all of them are physical quantity. Okay? Now let me give you some more examples before I proceed further. So let us look into a term or a word, something called as happiness, okay? Or if I may say sadness or sorrow or enjoyment, okay? ये सब जो चीज़ है दोस्तों, happiness, sorrow, enjoyment, ये सब चीज़ क्या मैं मेजर कर सकता हूँ? क्या मैं कह सकता हूँ I am 10 happy today, 20 happy tomorrow, 30 happy on Sunday, राइट? ऐसा कुछ बोल सकता हूं कि नहीं? ये ऐसी चीजें जिनको आप मेजर नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल सॉरो है, यू कैन नॉट से आई एम 10 सॉरो टुडे, आई एम 10 सैड टुडे, 20 सैड टुमारो, ऐसा नहीं बोल सकते, राइट? सिमिलरली विद एंजॉयमेंट, मैं ये नहीं कह सकता मैं आज 10 एंजॉय कर रहा हूं, कल 20 एंजॉय करूंगा, नहीं. सो ये सब जो क्वांटिटीज लिखा ना, दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज बिकॉज यू कैन नॉट मेजर देम. ओके, सो ऑल ऑफ देम आर बेसिकली माई समथिंग विच यू कैन नॉट मेजर. सो अगर ऐसा एग्जाम्पल आए ना, या फाइंड द ऑड मैन आउट ऐसा है ना, तो दे विल बी द ऑड मैन. ओके, दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज, नॉट फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, तो आया है एग्जाम में एक बार ऐसा, दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल एक एमसीक्यू ऐसा आया था पहले कि मास लेंथ टाइम और सॉरो, फाइंड द ऑड मैन आउट. सो द ऑड मैन आउट इज सॉरो. सॉरो इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, whereas these are examples of a physical quantities. Okay, fine. Now let me make you understand how to write a physical quantity. ये आपने देखा mass is a physical quantity, right? So let us see how can you write a physical quantity? Yeah, expression of
a physical quantity. So दोस्तों, let's say for example मैं express करना चाहता हूं the length of this mobile phone, right? बराबर, लेंथ ऑफ दिस मोबाइल फोन, मैं चाहता हूं इसका लेंथ मेजर करूं और लेंथ को एक्सप्रेस करूं. तो आप लोग ने देखा मैंने कैसा लिखा लेंथ को. आई रोट लेंथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. सीएम मतलब शॉर्ट फॉर्म इज सीएम इज नथिंग बट सेंटीमीटर. ठीक है, तो चाहिए तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हो. व्हाट इज दिस? 9 सेंटीमीटर, राइट? सो नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस. what exactly is this? What exactly is this? This is my physical quantity, right? ये लेंथ मेरा physical quantity है. So ये रहा मेरा physical quantity. What is this? 9. 9 is a numerical number, right? It's a numerical number. It's a numerical. Whereas if you look at this centimeter, what is this called? This is actually called a unit, right? So remember one thing very important, कि physical quantity will be equal to a number and along with that we write a unit, okay? तो इस तरह से एक physical quantity को लिखा जाता है. चाहे एक और example ले लूं. For example, if I say mass is equal to 2 kilogram, तो आप देख सकते हो this guy is your physical quantity, 2 is your numerical and kilogram is your unit, right? So whenever you write a physical quantity or whenever you express any physical quantity, it is very important to write the unit, okay? बिना unit के लिखा तो senseless है, right? Senseless है. It doesn't make any sense. For example, if I just write the length of this phone as let's say 9, सिर्फ 9 लिख के छोड़ दूं तो आपको पता नहीं क्या ये 9 सेंटीमीटर है, 9 किलोमीटर है, 9 मीटर्स है, कुछ पता नहीं. सिर्फ 9 लिखूंगा तो देयर विल बी कंफ्यूजन, राइट? क्या कोई कहेगा सर मीटर है, कोई कहेगा सर किलोमीटर है, कोई कहेगा सर सेंटीमीटर है, राइट? सो इट विल नॉट बी क्लियर. हेंस किसी भी चीज को अगर क्लियर करना है या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इफ यू वांट टू राइट क्लियरली देन यू हैव टू राइट द यूनिट, ओके? बिना यूनिट के काम नहीं होने वाला, ठीक है? सो दीज आर सम यूनिट्स गाइस, ओके फाइन. सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ यूनिट? Yeah, let us start with the concept of a unit, or I can say what are the different types of unit, okay? So unit तो आपको समझ में आ गया. It is used to express something. Let us see the different system of units. So दोस्तों, in physics हमारे पास mainly 4 system of units के बारे में we know. How many system of units? There are 4 system of units, and in these system of units we'll make use of like a unit or we'll make use of these 3 parameters which I just mentioned: mass, length and time. ठीक है? So we'll make use of mass, length and time. Now why is the system of units important? Because if you talk about mass, okay, yeah, mass, let's start first with length. If you talk about length, then with mass and then with time, okay? If I talk about these 3 things one by one. If you talk about length guys, length को as I just said, we can measure length in meter, you can measure length in centimeter, we can measure length in kilometer, right? Depending on where to use. We can even measure length in foot. और आपको कुछ पता है लेंथ के बारे में और किस तरह से लेंथ मेजर किया जाता है? It can even be measured in yards, right? इंचेस में भी मेजर किया जाता है. सो दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स बाय विच यू कैन मेजर लेंथ, राइट? फुट या फीट जिसे कहते हैं, 10 फीट 20 फीट, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैं 6 फीट का मैं इंसान हूं, मेरी हाइट 6 फीट है, तो मैंने अपना लेंथ जो मेजर किया है वो सेंटीमीटर में मेजर कर सकता हूं, किलोमीटर में मेजर कर सकता हूं, फुट में मेजर करता हूं, यार्ड में मेजर कर सकता हूं. ये सब टेक्निक्स है, ओके? अलग अलग यूनिट्स है. सो दे आर नथिंग बट डिफरेंट यूनिट्स फॉर द सेम थिंग. डिफरेंट यूनिट्स पर एक ही चीज मेजर कर रहा हूं, लेंथ अलग तरीके से मेजर कर रहा हूं. सिमिलरली गाइज वी कैन मेजर मास एज इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम्स. किलोग्राम्स में भी मास मेजर कर सकते हैं, ओके? ग्राम्स में भी मास मेजर किया जा सकता है. वी कैन मेजर मास इन टर्म्स ऑफ पाउंड्स, राइट? पाउंड्स. इवन यू कैन मेजर मास इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स ऑल्सो, राइट? आउंसेस,
राइट. These are all methods of measuring mass. Okay, अलग अलग टेक्निक से अलग अलग जगह मास मेजर किया जा सकता है. ओके, बहुत छोटी चीज है तो मिलीग्राम में ही मेजर की जाती है, राइट, ग्राम्स और मिलीग्राम्स. ओके, फाइन. सो दीज आर द मेजर्स ऑफ व्हाट, मास. मास कैन बी आल्सो मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स. सिमिलरली दोस्तों, टाइम, समय, टाइम कैन बी मेजर्ड इन सेकेंड्स. इट कैन बी मेजर्ड इन आवर्स, minutes, days, years, right? All of them are nothing but units of measuring the same physical quantity, that is what, time. So दोस्तों, as you saw, बहुत confusion है, right? बहुत confusion है. अगर मैं कहूँ कि length को अलग अलग, mass को अलग अलग, time को अलग अलग, ऐसा पहले बड़ा confusion था. ऐसा क्यों था पता है? I'll tell you why. For example, इंडिया वाले जो 1970s की 1700s की बात कर रहा हूं, इंडिया वाले या अमेरिका वाले, चलो अमेरिका से स्टार्ट करते हैं. अमेरिका वाले हैं ना, ये जो मेजरमेंट करते थे वो जनरली वो मेजर करते थे फुट में, यार्ड्स में, थिंग्स लाइक दैट. ओके, आई एम जस्ट गिविंग अ रफ एग्जांपल. और फ्रांस वाले मेजर करते थे मीटर, सेंटीमीटर में, राइट. तो दोनों में कंफ्यूजन रहता था. मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अमेरिका वाला बंदा फोन उठा करके कह रहा है द लेंथ ऑफ दिस मोबाइल इज 9, तो अमेरिका वाला सोचेगा कि लेंथ इज 9 मीटर, आई कैन से 9 फुट. ओके, बट फ्रांस वाला वो उसे 9 मीटर अज्यूम कर लेगा, हाँ या ना. तो देयर इज अ कंफ्यूजन, कोई स्टैंडर्ड नहीं है. सो दैट्स व्हाई देयर वाज सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट वर बॉट इन टू ब्रिंग इन अ स्टैंडर्ड. ओके, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड लाया जाए ताकि जब लेंथ की बात करें तो एक यूनिट सिस्टम डिफाइन किया जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि माई हाइट इज 6, अब आप बोलोगे सर 6 मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, क्या 6, राइट? व्हाट इज दैट यूनिट? So there is a confusion, right? So to avoid that confusion, there were certain systems of unit that were introduced. There were 4 system of units. Okay, out of those 4, we now accept only the last one. हम सिर्फ last one में पूरा 4th वाले के बारे में ही पूरा स्टडी करेंगे हमारे सिलेबस में. We won't touch the others as much as we'll touch the others, right? We'll touch the 4th one. So system of units की बात करूँ, so the first system of unit is something called as CGS system of unit या CGS system. What is the meaning of CGS? Okay, CGS मतलब, as you know, there are 3 parameters: length, mass. Okay, let me write it like this. CGS का मतलब, in CGS system of units, you have length, you have mass, you have time. Okay, so CGS unit का full form है, length is measured in centimeter, mass is measured in grams, and time is measured in seconds. Okay, so what is CGS system? CGS system is centimeter, grams and seconds. मतलब यहाँ पर लेंस, मास, ऐसा अगर इस तरह से मेजरमेंट किया गया तो उसे CGS सिस्टम कहा जाता है. ठीक है, तो अगर डिफाइन करना है तो आप डिफाइन भी कर सकते हो. व्हाट इज अ CGS सिस्टम? CGS system is a system in which length is measured in centimeter, mass is measured in grams and time is measured in seconds. Okay, that's why CGS, centimeter, gram, second. Okay, one minute more. MKS, yeah, one system more. Meter, K stands for kilogram and S stands for second. तो अगर कोई मुझे कहे कि मैं किसी पैरामीटर को MKS सिस्टम में मेजर करता हूं तो उसका मतलब क्या होगा? उसका ये मतलब होगा कि लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इन किलोग्राम्स एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकंड. ओके, सो दोस्तों ध्यान से सुनो, अगर मैं किसी को फोन करके बोलूं कि हाँ भाई मेरे यहां पर मैं CGS सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं कह दूं लेंथ इज 10 तो सामने वाला समझ जाएगा सिंस ही इज फॉलोइंग CGS, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर मैं किसी को फोन करके बोलूं भाई मैं MKS सिस्टम फॉलो करता हूं, MKS सिस्टम फॉलो करता हूं मतलब अगर मैं उसको कहूंगा लेंथ इज 100, दैट मीन्स MKS के हिसाब से लेंथ इज इन 100, तो दैट मीन्स 100 मीटर, राइट? तो यहां पर अगर कोई लेंथ कह दे 10, so that will mean what? Length is equal to 10 centimeter as per your CGS system. और यहां पर अगर कोई कह दे length is 100, so that will mean what? That will mean length is equal to 100 meter as per which system? MK system. तो एक सिस्टम फिक्स कर दिया हमने. ओके, फाइन. उसी तरह से दोस्तों there was one more system that was something called as FPS system. FPS में length was measured, F stands for foot या इसे feet भी कहा जाता है, foot. P stands for pound
and S stands for second. Okay, so here as you can clearly see कि यहाँ पर length is measured like this, length is measured in foot, pound and time is measured in seconds. Okay, so these were the three things which were used. Okay, तो अगर यहाँ पर अगर कोई कह दे लेंथ इज इक्वल टू 50 तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा लेंथ इज इक्वल टू 50 फुट. ओके, फुट या उसे फीट भी कहेंगे. ठीक है, फाइन. सो दीज वर दिस डिफरेंट सिस्टम. तो दोस्तों ऐसा हो गया कि हर कंट्री ने अपना सिस्टम बना लिया. इंडिया वालों ने फॉर एग्जांपल एमकेएस सिस्टम बना लिया, फ्रांस वालों ने सीजीएस सिस्टम बना लिया, इंग्लैंड वालों ने एफपीएस सिस्टम बना लिया. तो ये हो गया कंफ्यूजन. अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, राइट, प्रॉब्लम हो गया. क्यों? क्योंकि हर कंट्री ने अपना अपना बना लिया. तो जब एक कंट्री से कोई दूसरे कंट्री में जब कोई चीज जाती है ना तो हो जाता है प्रॉब्लम, राइट, क्योंकि यहां वाले उसको कुछ और सिस्टम समझते हैं, वहां वाले कुछ और सिस्टम समझते हैं. आई विल गिव यू वेरी क्लासिक एग्जांपल, अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट. एक बार ऐसा हुआ, दिस इज अ रियल स्टोरी है, ये स्टोरी बताना चाहता हूं, बहुत रियल स्टोरी है और बहुत आई कैन से ट्रू स्टोरी है. यूनिट्स कितने गड़बड़ करते हैं. देयर वाज अ फ्लाइट इन यूएसए. एक अमेरिका में एक पायलट फ्लाइट चला रहा था, कमर्शियल फ्लाइट थी, जैसे हम इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट ये सब सुनते हैं ना, वैसे एक फ्लाइट थी. उसने अपने क्रू को बोला कि मुझे हमारे प्लेन में फ्यूल भरना है. ठीक है, तो उसने बताया कि मुझे फॉर एग्जांपल, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, 25 केजी फ्यूल भरना है. ठीक है, कितना भरना है? 25 केजी फ्यूल भरना है. और सामने वाले को बराबर से समझा नहीं, क्योंकि उस समय इतना स्टैंडर्ड डेवलप नहीं हुआ था, हर कंट्री का अलग अलग था. तो उसने 25 केजी की जगह भर दिया 25 पाउंड. क्या हुआ, ध्यान से सुनो. उस पायलट ने बोला कि 25 केजी फ्यूल भरना ताकि हमें उड़ना है. अब 25 केजी की जगह पे उसने भर दिया 25 पाउंड्स. नाउ दोस्तों 25 पाउंड्स इज अराउंड 12 केजी. पाउंड्स इज लेस. ओके, 25 पाउंड्स को वैल्यू देखोगे तो इट विल बी अराउंड 12 केजी. तो पायलट को लग रहा है कि हाँ मेरे प्लेन में 25 किलो फ्यूल है, मैं आराम से अपनी जगह पे पहुंच जाऊंगा. पर सामने वाले ने भर दिया पाउंड. पाउंड की वजह से उतना फ्यूल था नहीं हमारे पास, क्योंकि 25 पाउंड्स इज नॉट इक्वल टू 25 केजी, राइट, बिकॉज 25 केजी इज मोर देन 25 पाउंड्स. तो क्या हो गया पता है दोस्तों, आधे रास्ते में फ्लाइट के फ्यूल ही खत्म हो गया. एक इंजन बंद हो गया, दूसरा इंजन बंद हो गया. बिना फ्यूल के हवा में क्या करोगे? फिर उस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. द गुड पॉइंट वाज, गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई जान नहीं गई, राइट. तो इतनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है अगर यूनिट में प्रॉब्लम हो तो. सो एज यू सॉ, सिंस इतनी बड़ी गड़बड़ होती गई, उसके बाद लोगों ने कहा नहीं, सब कंट्री एक जगह पे आ जाओ. फ्रांस अलग नहीं, इंडिया अलग नहीं, इंग्लैंड अलग नहीं, यूएसए अलग नहीं, सब लोग मिलके एक इंटरनेशनल यूनिट बनाओ. तो लास्ट में एक यूनिट आया जिसे कहा जाता है एसआई यूनिट या एसआई यूनिट सिस्टम. एसआई सिस्टम, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एसआई? स्टैंडर्ड या सिस्टम इंटरनेशनल. ये हर जगह फॉलो होगा. एंड व्हाट इज दिस एसआई सिस्टम? एसआई सिस्टम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज first length was measured in meter, mass is measured in kilograms and time was measured in seconds. Okay, so this was a standard system which was, I may say, accepted by everyone. अब से सब लोग SI यूनिटरी सिस्टम फॉलो करते हैं और हमारी टेक्स्ट बुक में भी हम फिजिक्स जितना भी पढ़ेंगे 11th 12th में जितना भी पढ़ेंगे, विल मेनली फॉलो द SI यूनिट सिस्टम. ओके, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम. ओके, फाइन. So before going forward guys, make a note up till here. So friends, we saw what exactly are physical quantities. Okay, now दोस्तों कुछ ऐसी physical quantity होती है ना that are fundamental in nature. Okay, जैसे वो एकदम basic होती है, उनके अलावा और कुछ नहीं, एकदम fundamental होती है. So now let us see what exactly are fundamental quantities, and altogether there are 7 fundamental quantities. Okay, pay that attention in your mind and let us define what are fundamental quantities. चलो. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब वो एकदम बेसिक है, ठीक है, वहां से सब चीज डिराइव होती है, पर मेन दोनों वो स्टार्टिंग क्वांटिटी है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, हम ह्यूमन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, राइट, एडम और ईव, वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट है ह्यूमन नेचर के, राइट. आई एम जस्ट गिविंग अ रफ एग्जांपल एज पर द बाइबल. एडम एंड ईव आर द स्टार्टिंग पॉइंट. वो पहले आदमी थे, वो पहले औरत थे, राइट, स्टार्टिंग पॉइंट. वहां से सब उनके बच्चे होते गए, बड़े होते गए. पर फंडामेंटली देखने जाओ तो एडम वाज द फर्स्ट मैन, ईव वाज द फर्स्ट वुमन, राइट. सो एडम एंड ईव से जैसे स्टार्ट होता है, उसी तरह से यहाँ 7 बेसिक
फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वहां से सब और दूसरी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है ना स्टार्ट होती है, ठीक है। सो व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज? सो आई कैन से वो ऐसी स्टार्टिंग है जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने परिवार की बात करो, अगर मैं मेरे परिवार की बात करूं तो आई कैन से मेरे दादाजी है और मेरी दादी माँ है, वो फंडामेंटल है, राइट, उनसे ही सब डिराइव हुए। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली ट्री बनाता हूं, चलो ध्यान से सुनो। लेट्स ड्रॉ अ फैमिली ट्री। तो लेट्स से दिस इज अ मैन, दादाजी एंड दादी, राइट, फ्रॉम देम फैमिली बढ़ती है आगे, राइट, ओके। सो देयरफॉर कैन आई से उनकी फैमिली बढ़ी, फिर लेट्स से मम्मी पापा उनके बच्चे, राइट, फिर ऐसा बढ़ेगी फैमिली, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। बट इफ यू सी स्टार्टिंग में फैमिली में तो सिर्फ यही दो ही थे, तो दे आर द फंडामेंटल वंस, वो किसी और पे डिपेंडेंट आई में से नहीं थे। लेट्स से एडम एंड ईव का एग्जांपल लेता हूं, दे वर द टू स्टार्टिंग पॉइंट्स, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करते थे, दे वर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टफ, राइट, बराबर। बाकी सब लोग इफ यू लुक समथिंग लाइक दिस, वो उन पे डिपेंड करते थे, राइट, ओके। सो बेसिकली जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हो गए जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते, दे विल बी कॉल्ड एज फंडामेंटल, और नीचे वाले बेसिकली जो है वो ऊपर वालों से ही नीचे वाले बने हैं, राइट, सो दे विल बी कॉल्ड एज डिराइव्ड, ओके। तो हम बाद में पता करेंगे व्हाट आर डिराइव्ड, ओके। लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन फंडामेंटल, ओके। सो दिस वाज जस्ट अ रफ एग्जांपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। So what are fundamental quantities? So fundamental quantity, for example, Adam and Eve, वो किसी और पे depend नहीं करते, right? So I'll just give you an example. I'll just write down the definition. Fundamental quantities are the physical quantities which do not depend on any other quantity or depend on any other physical quantity for their measurement. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर इनफ। फंडामेंटल वो जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते फॉर देयर मेजरमेंट, वो खुद अपना फंडामेंटल है, ठीक है। एंड एज आई सेड, लेट अस फर्स्ट मेक अ नोट ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज। कम ऑन, I'll make a block, I'll make a diagram, I'll make a table of 7 fundamental quantity. लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, I'll just push it down, 6 and 7. Let us try and understand the fundamental quantities, what are they? और दोस्तों यहाँ तो मैं fundamental quantities लिखने जा रहा हूँ, 7 fundamental quantities. ओके, यहां मैं उनके यूनिट्स को लिखूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज लेंथ। लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट आर द यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ? एसआई यूनिट की बात करूं, चलो एसआई यूनिट की बात करता हूं, ऐसे वैसे नहीं, एसआई यूनिट। तो अभी अभी देखा एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ओके। नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज मास। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? अभी अभी देखा, किलोग्राम, ओके, किलोग्राम, फाइन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, टाइम, नेक्स्ट इज टाइम एंड टाइम इज सेकेंड्स, ओके। तो ये तीन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, दीज थ्री आर द फर्स्ट फर्स्ट थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथ, मास एंड टाइम, ओके। या फंडामेंटल इन नेचर, बाकी सब जो बनते हैं वो इनसे बनते हैं, बताता हूं कैसे। द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज टेम्परेचर। द एसआई यूनिट ऑफ temperature is a unit called as Kelvin, आप लोग ने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में। The next one is electric current, ये भी fundamental है, okay. How is an electric current measured? It is measured in amperes, okay, ampere में measure किया जाता है, fine. Next is something called as luminous intensity. अभी के लिए सिर्फ नाम याद रख लो, बाद में इसका डिटेल पढ़ेंगे। What is luminous intensity? It is measured in a unit called candela. And last is nothing but amount of a substance. And how do you measure amount of a substance? You measure it in a term called as mole. Okay, mole. ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे डिटेल में, अभी मैं नहीं पढ़ाता है, ओके।
तो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करती, अपने सब एकदम बेसिक है, ठीक है। बाकी जो आते हैं वो इन पे डिपेंड करते हैं। तो दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दीज आर द यूनिट्स। अगर सिंबल लिखना है, सिंबल, तो मीटर का सिंबल इज m, किलोग्राम्स का इज लाइक दिस kg, सेकेंड्स का इज s, केल्विन का इज कैपिटल K, एम्पियर का इट इज कैपिटल A, कैंडिला का इट इज cd, एंड मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड लाइक दिस mol, ठीक है, मोल। दीज आर द यूनिट्स, ओके फाइन। सो दोस्तों, वन मोर थिंग बिफोर आई गो फॉरवर्ड इज, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स को आई कैन से फंडामेंटल क्वांटिटीज को जो मेजर कर रहे हैं ना जो यूनिट्स में, दीज यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, ओके। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट लगते हैं, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। सो आई जस्ट से, ये तो यूनिट है ही है, साथ में ये सब कौन से यूनिट्स है, क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, ओके। So how will I define fundamental units? Fundamental units are the units that are used to measure fundamental quantities. Okay. So just define it quickly. Fundamental units define करते हैं. Right? I want you to memorize all these 7. ये सातों के साथ आपको याद होने चाहिए. Okay. तो fundamental units are the units which are used to define fundamental quantities. ऐसे यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए या आई कैन से मेजर करने के लिए यूज किया जाए, और बेटर वर्ड वुड बी नॉट डिफाइन, मेजर, बेटर वर्ड वुड बी मेजर, the units which are used to measure fundamental quantities, right, are called fundamental units. Okay, fine. पर दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ाना भूल गया, यूनिट्स का मेन डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज बेसिकली अ यूनिट। सो यूनिट इज नथिंग बट इट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी। व्हाट इज अ यूनिट? यूनिट इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड, डेफिनेशन सुन लो, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट यूनिट में किया जाता है, ठीक है, फाइन। सो आई होप ये समझ में आ गया व्हाट आर फंडामेंटल quantities and fundamental units. Okay, now दोस्तों, let's proceed further and let us try and understand the next concept, that is derived quantities. So coming back to that example, as I just said, Adam and Eve are the starting point of humanity, right? वहां से जो सब आए वो उन्हें derive कहेंगे। तो what are derive? या in case of quantities, derived quantities are quantities which I can say which depend on fundamental quantity for their measurement. बाकी जितने भी बच्चे वो एडम एंड ईव पे डिपेंड करते हैं, राइट, वो नहीं होते तो बाकी नहीं होते, राइट। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, which depend upon fundamental quantities for their measurement. ठीक है, फॉर देयर मेजरमेंट। ओके, तो आई होप इतना समझ में, आई होप डिराइव क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में आपको आ चुका है। क्या आ चुका है कि फंडामेंटल बेसिक रहते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते, पर जो नीचे वाले डिराइव होता है वो ऊपर वाले फंडामेंटल पे डिपेंड करते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल गाइस, यू नो व्हाट इज वेलोसिटी या व्हाट इज स्पीड। चलो लेट मी डिफाइन स्पीड। सो आप बोलोगे सर स्पीड का फॉर्मूला क्या है? आप लोग ने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द लेंथ, राइट। सो बेसिकली इससे कहूं तो दिस इज लेंथ अपॉन टाइम। सो फ्रॉम हियर आई कैन से ये जो मेरा लेंथ है ये फंडामेंटल है, बिल्कुल फंडामेंटल है। ये टाइम में मेरा फंडामेंटल है, बिल्कुल फंडामेंटल है। सो देयरफॉर ये जो स्पीड है वो क्या है, वो इन दोनों पे डिपेंड करता है, राइट, बराबर, लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है मेरा स्पीड। सो देयरफॉर दिस विल बी अ डिराइव क्वांटिटी, राइट। समझ में आया? डिराइव, क्योंकि जो स्पीड है वो लेंथ और टाइम से मिला है, राइट, इट डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट्स व्हाई स्पीड इज अ डिराइव क्वांटिटी। ओके फाइन, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड। एकदम आसान से मैंने कंसेप्ट पढ़ा है। लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल। लेट्स से एरिया या एरिया ऑफ अ स्क्वायर,
area of a square will be length multiplied by length, length multiplied by length. So from here I can say that ये जो है ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, सो देयरफॉर ये जो एरिया है ये फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज होगी तो एरिया चेंज होगा, सो देयरफॉर दिस इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. ओके, एरिया डिपेंड्स ऑन लेंथ, दैट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी. फाइन, सिंपल सी चीज बताया एरिया. वन मोर एग्जांपल टू गो फॉरवर्ड विद, लेट्स से वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब? लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, राइट? आप लोगों ने मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ. सो देयरफॉर मैं कहूंगा यहां पर दोस्तों कि व्हाट इज दिस, ये फंडामेंटल, ये फंडामेंटल, ये फंडामेंटल, राइट? सो देयरफॉर ये होगा मेरा डिराइव क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे डिपेंड करता है. ठीक है, आई होप समझ में आ गया. सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और बाकी जितनी भी है, चाहे वॉल्यूम है, चाहे आई कैन से एरिया है, चाहे स्पीड है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वो सब के सब कौन से डिराइव क्वांटिटीज है. ओके फाइन, सो आई होप दैट इज क्लियर इनफ. सो लेट मी जस्ट come to this and I will say that physical quantities which depend on fundamental quantities are called derived quantities. Okay, so मैं complete कर देता हूँ definition. Physical quantities which depend on fundamental quantities for their measurement are called derived quantities, are called derived quantities. ठीक है, so now let us come back to your derived quantities and let's see this term of speed. Come on, speed. सो दोस्तों स्पीड तो हमने देख ली, दैट स्पीड इज अ डिराइव क्वांटिटी. स्पीड इज नथिंग बट एज आई सेड लेंथ अपॉन टाइम. तो यूनिट की बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट. तो यूनिट ऑफ दिस, यू नो, लेंथ का ऐसा यूनिट इज मीटर, राइट? यूनिट की बात कर रहा हूं. टाइम का ऐसा यूनिट इज सेकेंड. सो इफ यू सी व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड, राइट? इट कैन बी रिटन एज m अपॉन s और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज लाइक दिस, मीटर पर सेकेंड. ओके, so this is first term. Okay, let me give you one more example before I go forward. Let's say area, length into length, right? So unit क्या होगा इसका? Meter into meter. It can be written as meter into meter, can be written as meter square. So look at these two units, meter per second or meter square. They are nothing but they depend on my fundamental unit meter and second, right? So therefore इन्हें कहा जाएगा derived units. Okay, what will be these called? These will be called as your derived units, right? For example, one more example, let's go forward. Density, what is density? Mass upon volume, right? Mass upon volume, right? ये भी एक डिराइव क्वांटिटी है क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, राइट? फंडामेंटल क्वांटिटी मास और लेंथ पे डिपेंड करती है. वॉल्यूम इज लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ. तो अगर इसका यूनिट लिखूं मैं, तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस? मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स, वॉल्यूम इज मेजर्ड इन लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, दैट इज मीटर क्यूब. सो केजी पर मीटर क्यूब, ये भी मेरा क्या होगा? इट विल बी ऑल्सो डिराइव यूनिट, राइट? ये भी मेरा डिराइव यूनिट होगा. सो व्हाट आर डिराइव यूनिट्स? डिराइव क्वांटिटीज को आई कैन से मेजर करने के लिए द यूनिट टेकन इज कॉल्ड डिराइव यूनिट. फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट लगता है उसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं. डिराइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट लगता है उसे डिराइव यूनिट कहते हैं, राइट? सो व्हाट आर डिराइव यूनिट्स? सो आई विल जस्ट राइट दैट डाउन. डिराइव यूनिट्स आर units used to measure what? Derived quantities. Derived quantities. Simple definition, very easy, right? So keep this in mind before I go forward. इतना I hope आपको समझ में आ गया. Fundamental quantities or fundamental units, derived quantities, derived units. Okay, keep this in mind. So दोस्तों, we just saw that we have 7 fundamental quantities. Fine, there are 2 more quantities. They are called as your supplementary quantities. या 2 more units, something called as your supplementary units. वो 7 physical quantities को supplement करने के लिए we have something called as supplementary units. Okay, and there are 2 supplementary units. Let me explain you what are they. So first is something called as your plane angle. Plane angle. What do you mean by plane angle? दोस्तों,
I hope you all have studied the chapter triangle, yeah, quadrilateral, right? And from there you might have studied, okay, if I have two lines like this, let's say this is my first line, let's say this is my second line, so two lines make some angle, right? Like this, for example, if these are my two lines, in दोनों के बीच में कुछ angle बनेगा, and this angle will be called theta. Now why is this called theta? Because this angle is in a plane, right? For example, if I take this book, please pay attention to this. If I keep my two fingers, so these two fingers are in the plane of the book, right? They are forming a plane. तो इस plane में जो angle होता है, that is called as your plane angle. Okay, fine. So plane angle is, I hope it is very clear to you. So if you talk about plane angle, then that is one of the supplementary quantities. और उनका unit क्या होता है पता है? Theta का unit क्या होता है? तो the SI unit for theta is radians. Okay, SI unit is radians. हम नॉर्मल एक और यूनिट यूज करते हैं जिसे डिग्री भी कहते हैं, कोई बात नहीं, डिग्री भी कह सकते हैं, यूनिट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, रेडियंस भी कह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है. ओके फाइन. सो रेडियन एंड जनरली इट इज डिनोटेड बाय थीटा. ओके, व्हाट इज इट डिनोटेड बाय? इट इज डिनोटेड बाय माय सिंपल थीटा. फाइन. ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर ना. प्लेन एंगल समझ में आ गया. एक और चीज समझते हैं, समथिंग कॉल्ड एज योर सॉलिड एंगल. So plane angle was nothing but it is the angle in 2D, 2 dimension. 2D में था ये angle मेरा, right? Solid angle will be an angle in 3D. It is a 3D angle. What do you mean by 3D angle? So दोस्तों, let's imagine that you have a sphere. Okay, एक sphere देखा आपने? Ball, circle नहीं, ball. Ball 3D होता है और अगर आप 3D angle को देखो तो 3D angle define करता हूँ मैं. For example, एक torch लो, ठीक है? एक टॉर्च लो, रात के टाइम में अंधेरा करके एक टॉर्च लेके टॉर्च ऑन करोगे ना, तो आप देखोगे ऐसा कोन जैसा निकल रहा है, राइट? बराबर. फॉर एग्जाम्पल, रात के समय मैं ऐसे टॉर्च ऑन करता हूं तो आप देखोगे टॉर्च की जो लाइट है ना वो जब ऐसा निकलेगी, इट विल फॉर्म लाइक अ कोन. क्या बनेगी वो एक कोन की प्रकार से बनेगी. इट विल बी लाइक अ कोन. ठीक है, ऐसा कोन की तरह निकलेगा. तो जो यहां वाला एंगल होता है ना, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल. ओके, ये वाला जो एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड माय व्हाट एंगल? दिस इज कॉल्ड माय सॉलिड एंगल. ओके फाइन. लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट सॉलिड एंगल नाउ.